As if there are more students who are going to join, maybe in the next class or so. So therefore, we went in very slow. There was an introductory class. We'll give you the slides and you can go through. Okay, and therefore we are going to start with कि क्या हम करने जा रहे हैं अब. Okay, so what's an engineering? The profession in which knowledge of the mathematical and natural science gained by study, experience and practice is applied with judgment to develop ways to utilize economically the materials and forces of nature for the benefit of mankind. What's management is a set of activities including planning and decision making, organizing, leading and control directed at an organization's resources, that's human, financial, physical, informational, with the aim of achieving organizational goals in an efficient and effective manner. I'm sorry I'm slow today, and the reason I'm slow is that I've taken a medicine. I was not getting jet lag, मेरे से बाहर नहीं निकल रहा था, तो last night I took a medicine to sleep, and that is still affecting me. I'm not going to sleep in the class, don't you worry, but I'm slow, right? So, and I'm slow means you're going to enjoy the class, right? मैं किसी को कुछ आज कहूँगा नहीं. Okay, engineering management is concerned with the direct supervision of engineers and the management functions, planning, organizing, leading, controlling in a technological organization, prepare engineers to become effective leaders in meeting the challenges in this new millennium. Technology in business, say, represents a very powerful combination of great demand in society. Market environments is rapidly evolving, changing marketplace, complexities, web-based technologies, globalization. Leaders with understanding of technology and management perspective are needed. Engineers with proper management and leadership training have great opportunities to add value. Yesterday my son, he's in the army, he was home and he was sitting with me and said, Baba, I've done something. I said, what? He said, in my unit, officers kind of, whenever they need to plug change करना है या कुछ करना है तो वो किसी ना किसी को बुला लेते हैं कि आप plug change कर दो तो टीवी ठीक कर दो तो I said, so what have you done? I said, I do everything myself. मेरी कोई भी टेक्निकल चीज़ ख़राब होती है तो मैं खुद उसे हैंडल करता हूँ. And I've seen very senior people who kind of rely on very small things on others. Now this is an era of specialization. दुनिया जा रही है disposable products के ऊपर. Purpose. Literacy has a definition, and anybody who understands the definition of literacy? Literacy क्या definition? The ability to read and write in the local dialect. Local dialect. जो अपना नाम लिख ले वो literate. आप क्या कहती हैं literacy क्या definition? To be able to read and understand. Okay. यहाँ पे कोई और नहीं, हर किसी की अपनी there's a बाकी दुनिया के अंदर एक definition develop हुई है literacy. Knowledge क्या होता है? necessary knowledge. Knowledge क्या होता है? How do you define knowledge? जो आपकी रियल लाइफ जो चल रही है उसके अंदर आपको जितनी छोटी मोटी मुश्किलात आती हैं या फिर आपको तो उनके बारे में. Okay, my dog can enter the house from any corner wherever he finds, and he can even leave the house. Is he knowledgeable? No. Why? What's the definition of knowledge? Acha, chale. We as students and we as professional students must understand the connotations of various words or terminologies that you use. ठीक? कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं होता मैं अमूमन एक वर्ड ज़्यादा चला नहीं होना. A professional is not a challa. He understands every
intricacy of every word that he uses as a connotation in his own profession. तो सारे words को इकट्ठा, you know, all similarly pronounced and similarly uttered words or spelled words do not have similar connotation also. So चीज़ों को समझने की कोशिश करें. पहला सवाल इससे पहले क्या था नॉलेज से? क्या चीज़ पूछ रहे थे हम? डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी क्या है? बताता हूँ फिर आपको आगे थोड़ा सा एहसास होगा. पिछली क्लास में हमने कुछ बातें की थी, कुछ लोग मिसिंग है तो वो उनको किसी और वक्त उन बातों पे लेके आएंगे. लेकिन लिटरेसी की डेफिनेशन मुझे चाहिए. अच्छा, द वर्ड व्हेन द वर्ड बिकेम कंज्यूमर ओरिएंटेड, वर्ड हैज़ बिकम कंज्यूमर ओरिएंटेड. ये चीज़ समझने की कोशिश करें. आपकी जितनी चीज़ें आप कंज्यूमर के लिए डेवलप की जाती हैं उनको यूज़ करने के लिए पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है. लेकिन पॉपुलेशन में कैपेबिलिटी होनी ज़रूरी है उन कंज्यूमर गुड्स को यूज़ करने के लिए. द कैपिटल वर्ड prospers on the consumer product distribution and purchase. बात सही? अगर कंज्यूमर चीज़ें ख़त्म हो, फॉर एग्जाम्पल गाड़ियाँ ख़त्म हैं, गाड़ी इज़ अ कंज्यूमर वर्ड. अगर मतलब बंदा नहीं है तो गाड़ी की ज़रूरत नहीं है ना. जहाँ जब बंदा है और किसी चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए तो वो कंज्यूमर गुड होगी. ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट. व्हाट्स द रिक्वायरमेंट? अ पर्सन शुड बी एबल to effectively open the brochure of a consumer good and translate into a working knowledge to operate that object. And if he can do it, he's literate. ये है आज की definition of literacy. बहुत सारी, the word literacy has actually progressed over time, right? जो उन्होंने बात की कि एक बंदा अपना नाम लिख सकता है literate है. श्रीलंका में लिटरेसी का और मतलब है, पाकिस्तान में लिटरेसी का और मतलब है. लेकिन सारी कैपिटलिस्ट वर्ड में लिटरेसी का मतलब ये है कि प्रोड्यूसिंग लिटरेट पीपल हु कैन ओपन द ब्रोशर ऑफ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, रीड इट एंड अप्लाई इट ऑन द प्रोडक्ट. ठीक. सो आप एक कंज्यूमर वर्ड के अंदर दाखिल हो जा रहे हैं जिसमें आपके लिए ज़रूरत है. अब हो ये रहा है कि अमेरिका के अंदर फॉर एग्जाम्पल लिटरेट पीपल भी कंज्यूमर गुड्स में से कोई छोटी सी चीज़ भी ख़राब हो जाती है तो वो उसे खुद ठीक करने के काबिल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी के अंदर द अदर डे आई डिडंट हैव इनफ ऑफ टाइम, सो आई एम अ लिटिल बिट लिटरेट. तो मेरी गाड़ी के अंदर वो सामने लिखा आ गया टायर प्रेशर लो. मैं उसके पास गया अपने पेट्रोल पंप के ऊपर, मैंने चेक किया कितना टायर प्रेशर होने का, 30 होना चाहिए. तो मैं सब 30 पूरा कर दिया. 30 पूरा कर दिया तो मैं वापस आया, मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट की. मैंने कहा यार गाड़ी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरा प्रेशर पूरा हो गया. तो मैं उसका अंदर देखा तो इट वाज स्टिल सेइंग कि यार वो पूरा नहीं हुआ. सो मैं कहा यार तो बड़ी गड़बड़. सो आई कॉल्ड द मर्सिडीज डीलर. मैंने उसे कहा कि यार वो ये सामने लिखा आ रहा है. कैसे कोई मसला नहीं, मैं कर देता हूँ उसे. मैंने कहा क्या करना है? कैसे? 2 तरीके मेरे पास ले आए. आई चार्ज 10,000 रुपीज़ टू पुट इट राइट. राइट. मैं क्या अच्छा उसके अलावा और कोई तरीका? कहते सर और तरीका आपको ढूंढ लें. I said okay. Since I'm literate, so I spent about 3-4 minutes to find out. So I went to the menu of the car. जो मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर मेन्यू आ गया. मीटर, उसी मीटर में जहाँ लिखा था उसमें मेन्यू आ गया. तो मेन्यू में आज जाते जाते मैंने देखा कि वो एक एनालिसिस का है. मैं उस एनालिसिस को टच किया तो उसके अंदर उसमें लिख दिया कि यू नो योर कार प्रेशर दिस. तो उसने उस पर लिखा चेक अगेन. तो मैंने उसे चेक अगेन करके यस प्रेस किया तो उसने कार प्रेशर चेक किया खुद और सामने लिखा गया इट्स क्लियर नाउ. जस्ट फॉर दिस थिंग दैट गाय वाज चार्जिंग मी 10,000 रुपीज़. In about 4 minutes time or 3 minutes time, I went to a right place और मैंने उसको क्लिक करके उसके मैसेज को ख़त्म कर दिया. ठीक. तो बाकी दुनिया में अगर कोई भी अमेरिका के अंदर यही वाली बात उससे होती तो वो ख़ुद कभी भी ना करता. वो जाता मर्सिडीज़ के डीलर के पास, उससे कहता कि मुझे ठीक करके दो. और वो इतना ही ऑपरेशन उसने दोबारा करना था कि वो उस मेन्यू में जाता और वो मेन्यू सामने लिखा होता 3 मिनट में आप उस पर पहुँच सकते हैं इफ़ यू डू अंडरस्टैंड दैट. अगर आपको पता है कहाँ जाना है, और अगर आप नहीं पता तो आप ढूंढ सकते हैं 4 मिनट में. सो इट वॉज अ क्वेश्चन अबाउट 3 minutes and 4 minutes इन विच यू कुड हैव सेव दैट. ठीक. सो इसलिए एक और बड़ा फ़र्क
बड़ा फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में और हमारे जैसे गरीब मुल्कों में, विच इज़ नॉट अ कंज्यूमर वर्ल्ड एज येट, आपकी कोई चीज़ रेडियो ख़राब हो जाए तो आप 6 दफ़ा उसे ठीक कराते हैं। 600 का रेडियो होगा, लेकिन आप उसे 6 दफ़ा ठीक ज़रूर कराएंगे। ठीक है, आपकी कोई लिंट रिमूविंग वाली वो छोटी सी ख़राब हो जाती है, आप 100 दफ़ा कोशिश करते हैं यार सेल चेंज कर लूँ, ये कर लूँ, होती 300 रुपये की है, लेकिन आप उसको ठीक कर लेते हैं एंड ऑफ द डे। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है। इफ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, थ्रो इट अप, राइट, दे गो इन एंड बाय अ न्यू वन। इस प्रीमाइज के ऊपर दुनिया की इकॉनमी चल रही। ठीक ठीक हो गया। हम एक गरीब मुल्क हैं, हम इसे नहीं करते, इसलिए ज़रूरी है कि स्पेशली जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो तो अपने घर की हर चीज़ समझे ना। जो भी टेक्नोलॉजी वाली, अच्छा आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक यू गेट इन टू इट, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम एंड फाइंड। मैं एग्जांपल, मैं आप कहता हूँ मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, तो मेरे बच्चे कहते हैं कैसे बूढ़े नहीं हो रहे, आप तो बूढ़े हो रहे हैं। तो मैं कहता नहीं हो रहा। जिस दिन आपको मेरे से ज़्यादा गैजेट्स का पता होगा उस दिन मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं मान जाऊँगा। बट टिल द टाइम, वाई? बिकॉज यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम you start giving away your authority on time. आप कहते हैं यार मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है, मैं इधर स्पेंड करूंगा, इधर स्पेंड करूंगा, इधर स्पेंड करूंगा। तो उन स्पेंड करने के अंदर जो गैजेट्स का वो खाना है ना, वो पीछे रह जाता है, क्योंकि ज़िंदगी में हमारी एज के ऊपर और बहुत सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं, और ये खाना विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बच्चों के पास बेइंतहा टाइम होता है ना, तो काम कुछ करना नहीं होता, पढ़ाई भी नहीं करनी होती और कुछ और काम भी नहीं करना होता। सो दे काइंड ऑफ कीप प्लेइंग विद द गैजेट्स इन दिस, दैट्स हाउ दे गेट टू नो लिटिल मोर अबाउट इट। बट हैविंग सेड दैट, you as people who are growing up, you must keep spending time on the gadgets, because this is going to make you feel old. जिस दिन आपका छोटा सा बच्चा आपको कहता है बाबा फ़ोन दे, मैं अब आपको करके देता हूँ, आपका हॉटस्पॉट नहीं ऑन हो रहा, मैं अब आपको वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करके देता हूँ। जिस दिन उसने आपको ये कहा उस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे। तो आपने बूढ़ा नहीं होना, ठीक है? ये सब चीज़ें मालूम करके, ठीक है? हॉटस्पॉट ऑन करना आता है? किस किस को नहीं आता? अब कोई भी नहीं बताएगा, बस ये बताने के लिए कि हम जवान हैं बड़े। ओके, वंडरफुल। सो बात कहने की ये है कि यू मस्ट, ये एज अ पर्सनैलिटी डेवलप करना है इन ऑर्डर फॉर यू। हमारे जब एज थी ना, हमारी एज के अंदर जो जनरेशन गैप था वो बहुत अरसे के बाद आया, ठीक है? हमारी एज में जनरेशन गैप आया 30 ईयर्स के बाद, और 20 और 30 ईयर्स के दरमियान में जनरेशन गैप आया। और जनरेशन गैप आता है खाली सोशलॉजिकल फैक्टर तो एक हिस्सा है ना उसका, जो उसके टेक्निकल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जनरेशन गैप तेज़ी से आता है, ठीक? आपकी एज के ऊपर 10 साल है मैक्सिमम टाइम जनरेशन गैप का, और शायद इससे भी कम। तो डोंट डू दैट। इस 10 साल को अपने बी ऑन द टॉप ऑफ दीज ईयर्स, तो यू नॉट फेस दैट। अगर बच्चों को कोई मूवीज़ के नाम पता है तो वो मूवीज़ के नाम आपको पता होना चाहिए, कार्टून्स के नाम पता है तो आपको कार्टून्स के नाम पता होने चाहिए, गैजेट्स के नाम पता है तो आपको गैजेट्स के नाम पता होना चाहिए। हाउ टू ऑपरेट दोज गैजेट्स यू शुड नो। गाड़ी के अंदर, गाड़ियों के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्या पता है कि नहीं? नहीं पता ना, तो फिर आप बूढ़े हैं अभी से। V8 में कौन कौन सी सीरीज चल रही हैं? नहीं, मैं टोयोटा की उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं V8 के? टोयोटा लैंड क्रूजर, प्राडो V8 नहीं है, ये फॉर्च्यूनर V8 नहीं है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राडो एंड फॉर्च्यूनर? ये वो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, ये अगर आपको नहीं पता ना तो यू आर बिहाइंड समवेयर इन द लाइन। यू हैव टू बी इन फ्रंट एक्चुअली। आप पढ़ने आ गए हैं इधर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, खाक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ के करेंगे क्या? देखिए, जिंदगी में जॉब उस शख्स को अच्छा मिलता है हु इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हर चीज़ पता है। When you sit in an interview, you should know more than the guy who's interviewing you. अगर ऐसा नहीं है तो he'll fail you. जी, वो सीरीज क्या है?
V8 के अंदर मॉडल्स हैं ना और बहुत सारे, जिससे GLI XLI ये वो होता है, उसमें क्या है? देखो अगर तुम मेरी क्लास के अंदर इस तरह की बेहुदा बातें करोगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। ये VX वगैरह जो है प्राडो वाली में VX, V8 में क्या है? अब देख लें, आप इंजीनियर्स हैं, आपका काम है इसमें कि मार्केट की सब चीज़ों का पता होना, और एक बेइंतहा गाड़ियाँ ये मार्केट के अंदर फिर रही हैं, रोज़ाना आपकी गाड़ी के आगे वो गाड़ी एक लगी होती है, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन सी गाड़ी आई हुई। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द women because they are not really current on the vehicles, but you are young engineers, थके हुए हो, बीमार हो, दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है, V8 का शौक़ नहीं है, गाड़ी चलाने का शौक़ नहीं है, अमीर बनने का शौक़ नहीं, क्या मसला है आप लोगों का? How come that you don't know about what somebody is making billions of dollars on V8? फिर आपका लेकिन इरादा ये है कि मेरा क्या तो लगे बिलियंस ऑफ डॉलर से, मैं तो तनख्वाह लेनी है 1000 रुपये बढ़ गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं पता सर, V8 का शौक है ऐसा नहीं है, लेकिन वो जैसे रेंज रोवर आती मुझे बेसिकली वो होते हैं, जैसे रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर हो गई, रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर दोनों मुख्तलिफ किस्म, वो कोई और मुल्क की गाड़ी है, ये किसी और मुल्क की गाड़ी है। क्यों नहीं पता? अच्छा तो चलो, प्राडो तो आपने सब देखी होगी, पिछले 20 साल से देख रहे हैं, ठीक है। सर इंजन कैपेसिटी का पता है फर्क कि मेजर प्राडो जो है वो 300 सीसी की है सर, खाली 300 सीसी। प्राडो में आपको 2700 सीसी, 3003 सीसी, 3400, 4000, 4300 तक, ये सारी प्राडो में। और जो सर है ना V8 सर वो स्टार्ट ही 4200 से होती है। अच्छा नहीं, वो तो इंजन कैपेसिटी नहीं, उसके आगे चीज़ें क्या है, उसमें सेंसर्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें फालतू हैं, क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना आपको। क्या फिर पता क्या है? इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ने का मतलब ये है, यू शुड बी ऑन द टॉप द वर्ल्ड। आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो अब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का फ़ायदा होगा ना। मैं अभी गाड़ियों का पूछा है, मैं अब आपको कंप्यूटर्स के बारे में पूछूंगा, टेलीफोन्स के बारे में पूछूंगा, डॉलर्स के बारे में पूछूंगा, गोल्ड के बारे में पूछूंगा। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स देन ऐसे ही अपने जाओ और अपने भैंस चराओ। भैंस चराने कितने लोगों का शौक यार, उस पर भी शर्मिंदा हो, भैंस चराने पे ये भी नहीं मालूम कर रहे हो, तो कुछ तो ऐसा करो ना कि जिसके अंदर यू शुड बी बेटर देन अदर्स। ओके, अपने दिल में सोचो, व्हाट आर यू बेटर इन, व्हाट्स यू नो फील्ड आर यू बेटर देन ऑल अदर्स। दिल में सोचो, सोच लिए, बताइए। हार्ड वर्क। डंकी से बेटर हो? नहीं, एज इंजीनियर। ओके, वो भी बहुत अच्छा इंजीनियर होता है यार। सर IoT प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो उसके ऊपर। यू बेटर देन एवरीबडी एल्स, माशाल्लाह। चल, इनकी हंसी निकल गई। स्पोर्ट्स कोई गोल्ड मेडल, कोई इन सब ये तो बेचारे सारे इंजीनियर हैं, इन्होंने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं करना। अच्छा होने का मतलब होता है बेटर देन जस्ट एवरीबडी एल्स। When I was doing my PhD, I submitted my thesis to my advisor. I thought it was done. On the top page of that thesis, my advisor wrote a sentence. And he said, Nadeem, I went to a top of the line university, बहुत तीसरे दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे यूनिवर्सिटी थी। तो मेरे एडवाइज़र ने उसके ऊपर लिखा प्रोफेसर रॉबर्ट आई कार, a big name. He said, Nadeem, if you're not the best in the world in the subject, you're not getting a PhD degree from this university. It took me 1 year to redo my thesis. But I'm so glad, looking it again, I'm so glad that I spent that 1 year, because I just didn't improve in 5 years as much as I improved in just 1 year. ठीक, तो अगर ज़िंदगी में कोई काम करना है तो यू शुड बी द बेस्ट इन इट, अदरवाइज कुछ करने का फ़ायदा नहीं। क्या फ़ैसला किया आप?
Sports and management, because in management I have created my own company C4 level, and I have pre-qualified in 2 firms, in GEPCO and in sports I have been the player of the year for 2 years in cadet college. And कौन से कैडेट कॉलेज में गए हैं? बटरासी. अच्छा, वेरी गुड. आप? Wired and wireless networks. वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क, क्या काम करते हैं आप? Sir, मैं basically assistant business manager हूँ, लेकिन I work in RF optimization with Huawei North 3G rollout project. Bilal Umar साहब. So ये जो आजकल के टेलीफोन चल रहे हैं, ये क्या क्या फ्रीक्वेंसीज हैं? सर इसमें जो इसके हैं वो 3.5 और 2.54 के हैं, और जो नए आजकल आ रहे हैं कार्डलेस आ रहे हैं वो 350. मैं मोबाइल टेलीफोन की बात कर रहा हूँ. सर मोबाइल टेलीफोन जो है ना, इसमें जो एक है वो 800 और 1900 मेगाहर्ट्ज़ है जो आपके 2G हैं, और जो 3G हैं वो 2100 से 2110 से लेके 2400 तक. जो आईफोन है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी? सर इंटरेक्टिव विद आईफोन. उसकी इंट्रैक्शन के लिए आपको दरख्वास्त देनी पड़ती? नहीं सर, वो हमारे यूज़ में नहीं है, मतलब यूज़ है या नहीं, मार्केट के अंदर है ना. आईफोन के इश्यूज़ हैं कुछ फ्रीक्वेंसीज के हवाले से, वो क्या है? आईफोन के आई थिंक जो बिल्ट इन है वो ये है कि उसके फैक्ट्री रीसेट्स के इश्यूज हैं. और अब ज़रा चेक करना फ्रीक्वेंसी इश्यूज़ विद आईफोन. सर इंजीनियरिंग रिलेटेड नहीं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो सर फुटबॉल को उसकी न्यूज़ के बारे में रीड करना होता है. बस खाली रीड करते हो? क्या आप कौन सा गोल्ड मेडल लिए? गोल्ड मेडल किस में लिए? स्पोर्ट्स देखने में सबसे बेहतर हो? सिंगिंग. मेहदी हसन, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस. सुनते हो? सुनने में अच्छे हो? सिंगिंग में जाता हूँ. ये तो फिर सुनेंगे. We have somebody in the class. Okay. Sir, lawful interception and related telecom policies. Lawful interception. Are their inceptions all lawful? Sir, I cannot comment on that. So you're talking about EW, right? No, sir. You're talking about legally mandated interceptions. अच्छा. तो For example, for producing evidence in a court. तो टी में रहे हो यहाँ पे? Sir, मैं 98 से सीपी में. टी में गए हो? DGT वो किधर? चौधरी क्या नाम? हाँ, उधर ही. He's my student again. My cadet also and my student also. स्पोर्ट्स में क्या करते हो? खेलना शुरू किया अभी? अच्छा, चलो. बच्चियाँ कोई कुछ कहना चाहती हैं? कुछ somebody wants to say something? मेजर साहब तो माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट है अपने काम में. जी, कुछ कहना चाहती हैं? ऑमलेट अच्छा है. You cook the best omelette in the world. Okay, wonderful. तो जैसे आजकल मैं जो अपना करियर में जो काम कर रही हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और अदरवाइज ये जो प्रोजेक्ट लाहौर वाला पकड़ा गया इनका, ये PPP वाला प्रोजेक्ट नहीं था? ये जो अभी हाउसिंग वाला था? मैं ज़्यादातर टेलीकॉम के इस पे. अच्छा, टेलीकॉम वाले प्रोजेक्ट. गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं इस पे. बट अदरवाइज सर टाइम मिलता है तो ऑनलाइन रेसिपीज देखते शौक है मुझे. काम करती हैं ऑनलाइन रेसिपीज? जुबैदा आप आके टोट के. I tell you, these hacks are very, very important. Many times the hacks work a lot. Especially जो नेट के ऊपर आप जाके सर्फिंग करते हैं ना ख़वातीन के लिए, हैक्स बहुत काम की चीज़ है. बेटा आपने कुछ कहना चाहती हैं? कुछ भी नहीं कहना चाहती? तो ये बेसिकली दिस इज़ एन इशू. आपको पता चल गया कि आप लोग कौन हैं और किधर जा रहे हैं. यू गोइंग नोवेयर, बट यू मस्ट प्लान टू गो समवेयर. अगर आपकी ये प्लानिंग नहीं है ना कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप कुछ करेंगे भी नहीं. यू मस्ट प्लान. अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो फिर आप आसमानों पर नज़र कर, अंजुम महताब देख,
صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. مسٹ بی اے ڈریمر. خواب نہیں دیکھی تو پھر بہت ہی زندگی بھینسوں کی طرح نہیں گزارنی. یہ فیصلہ کریں آپ لوگ. یو جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ دا ٹائم لائک اینیملس. خالی لٹرس نہیں پروڈیوس کرنا ہے, کچھ کام کرنا ہے دنیا میں, اور سب سے اچھا کام کرنا ہے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا. اچھا میری کلاس کے اندر جی یہ ایٹیٹیوڈ کے کچھ نہیں کرنا. ایوریج ایٹیٹیوڈ نہیں, ایوریج پیپل, ایوریج. ہاں یہ اپروچ آئی ہے ہمیں, ہماری غلامی نے دی ہے یہ اپروچ. غلام کبھی سوچتا نہیں ہے. نہیں, غلام آپ کا کبھی بھی سوچتا نہیں ہے. آپ کے گھر میں ٹاپ آف دا لائن لڑکا بھی کام کر رہا ہے نا, اس میں بے انتہا پوٹینشیل ہے, وہ کچھ کرے گا پھر بھی نہیں, بیکاز اس کی سوچ محدود کر دی گئی ہے کہ تم غلام ہو اور تمہیں جو کچھ کہا جائے گا وہ کرو. ڈونٹ ٹرائی اینڈ تھنک مور. ہمارا بڑا کامنلی سینٹینس ہوتا ہے, اوے تمہیں جو کہا ہے وہ بس وہ کرو. تو اس کے دماغ کے اندر یہ بیٹھا رہتا ہے مجھے جو کہا جائے گا میں وہ کروں گا, اس کے علاوہ تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت. تو یو کائنڈ آف پٹ اے اسٹاپ آن یور تھنکنگ وچ از یہ چلو غلام تو یہ گھروں میں لازم تو نہیں ہے نا لوگ, یہ انجینئر ہیں, یہ بھی نہیں سوچتے کچھ. اس لیے نہیں سوچتے کہ ہم اسی ایک طبقے میں سے نکلے ہیں جو غلاموں کا طبقہ ہے, جن کی سوچ آزاد نہیں ہے. غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیر نہ تھکتی ہے. جو مرضی اللہ میں تمہاری قسمت میں کچھ لکھ دیا پھر بھی نہیں حاصل کرو گے, پڑا ہی رہ جائے گا, حاصل نہیں کرو گے. فوجی آفیسرز ہیں نا, فوجی آفیسرز کو سرکار پلاٹس دیتی, وہ پلاٹ رکھ چھوڑتے ہیں. 15 سال 18 سال کی نوکری میں پلاٹ مل جاتا ہے تو 30 سال کی نوکری دیکھو پلاٹ پڑا رہتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. اس کو رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو کسی بچی کی شادی کرنی ہوگی تو تب استعمال کریں گے. اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوتا ان کو, بس وہ بچی کی شادی ہوتی ہے اور پلاٹ ختم ہو جاتا ہے. ایسی زندگی نہیں گزارنی. اپرچونیٹیز جو سامنے آئی ہیں, جسٹ گو آفٹر دوز اپرچونیٹیز امیڈیٹلی, ڈونٹ ویسٹ ٹائم. Typical engineering activities are design development of product processes, project engineering management, value engineering and analysis, technology development, applied R&D, production, manufacturing and construction, and customer service. Work of an engineer is technical contributor. میں تھوڑا سا سلو اس لیے بھی جا رہا ہوں کہ I want the rest of the people also join in. میں اتنے زیادہ لیکچر نہیں کور کرنا چاہتا before the other. ذرا چیک تو کریں کب آ رہے ہیں. آفٹر دی مڈ ٹرم. اچھا دیئر 19th of this month. ہماری کتنی کلاسز ہو چکی ہوں گی؟ وہ شامل ہوں گے. اب یہ سیکنڈ کلاس جا رہی ہے تو اگلی کلاس میں بھی نہیں ہوں گے. فورتھ میں ہوں گے؟ یہ کہہ رہے نہیں ہوں گے. فورتھ میں ہوں گے. چلو ٹھیک ٹھیک ٹھیک. 23rd کو کیا منڈے؟ میر صاحب آپ نے زیادتی ہے. اوکے. Understand objectives of the task specified, develop action plan for implementation, define standards, performance metrics, select methodology and techniques, implement tasks with a proper effort, generate results and secure value, and report finding and track lessons. Make engineers more effective as technical contributors, understand managerial points of view, effect team coordination, drive to add value. Ready engineers for managerial positions, managerial functions, success factors, leadership talents, business management perspectives, expectation, contribution. Dual aims. Make engineers more effective. This is make engineers more effective in decision involving technological. Make ready engineers for contributing effectively in the management of technology. Henry Foyle, 1841 to 1925. He was a mining engineer. 6 primary functions of management: forecasting, planning, organizing,
commanding, coordinating, leading, and controlling feedback adjustment. These are those functions of engineering management: planning, leading, organizing, and controlling. Planning entails forecasting, setting objectives, action planning, administering policies, establishing procedures. Organizing is selecting organizational structure, delegating established working relationship, leading, deciding, communicating, motivating, selecting, and developing people, controlling, setting performance standards, evaluating, documenting, and correcting performance. Be aware of our weaknesses. We are poor at learning from the past. How to improve our management? Intuition should fully utilize past information to update both current beliefs and future predictions. We are active learners, but tend to filter information to confirm our opinions. हम opinion formulate कर लेते हैं, फिर जिस information को भी देखते हैं हम उसको tailor करने की कोशिश करते हैं that this information proves that our past learning has been correct. आज मैं किसी को कहूँ कि यार ज़मीन तो गोल नहीं है और मैं जो मर्जी उसके ऊपर आर्गुमेंट दूँ, वो कहेगा ये आर्गुमेंट मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि आई ऑलरेडी नो कि ज़मीन गोल, राइट? So therefore it becomes so difficult to actually convince people who have pre-formulated ideas, and engineers are like that. Why? Because वो कहते हैं मैंने तो theorem में proof हुआ था ना, वो theorem तो यही कह रहा था ना कि 2 + 2 is 4. So therefore I would never agree on anything other than this. Conservation bias, reluctant to give up prior beliefs about the world even in the light of new information. Review of belief towards right direction is often insufficient or overly conservative. अमेरिका में एक जगह उन्होंने बनाई हुई है जहाँ पे आप जाके खड़े होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो tilted हैं. So there was a guy who came to me, there's a place over there in which the laws of physics do not follow. मैंने कहा क्यों? वो कहा कि वो बिल्डिंग सारी की सारी जो हैं वो इस तरह हैं और वो टेढ़ी हैं, आप जितना मर्जी खड़े होकर देख लें वो इसी तरह होती. Actually, he's a guy who is not realizing कि साइंस ने कुछ चीज़ें जो प्रूव की हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए you have to have scientific proofs, and this was not a scientific proof, it was a visual illusion that they had created. ठीक, अब कौन समझ सकता है ये बात? वो जो इंजीनियर है जिसने पहले अच्छी तरीके से समझा है कि फिज़िक्स का क्या असूल है, वो इसे अच्छी तरीके से समझे कि मैं सिंगापुर में एक जगह गया तो वहाँ पे उन्होंने एक वाटर टैंक बनाया हुआ है. वाटर टैंक में से पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर नहीं निकल रहा, उसमें फिश भी है, और उसमें एक जगह ओपन वो है क्या कहते हैं ट्यूब लाइक थिंग विच इज कमिंग आउट, ये सब शीशे का बना हुआ है, उसमें से बाहर निकला हुआ है और पानी उस टैंक, ये टैंक इतना भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन उस पानी वो जो नीचे इतना सा कप है उसमें से पानी कनेक्टेड है टैंक के साथ, बट इट्स नॉट फॉलिंग आउट. What would be the reason? एयर प्रेशर. क्या मतलब? जैसे आप बॉटल को ग्लास के ऊपर अगर रखते हैं तो ग्लास अगर हाफ हो और आप उसकी जो बोतल का मुंह तो पानी में दे दें तो बाकी पानी बॉटल में ही रहेगा. नहीं, लेकिन आप तो ओपन है ना, वो ओपन सिचुएशन तो नहीं थी ना, ये ओपन सिचुएशन. टैंक ओपन है. हाँ टैंक नहीं, टैंक ऊपर से नजर नहीं आता कैसा है. ऊपर वैक्यूम क्रिएट, हाँ उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, लेकिन लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा? पानी इसलिए नहीं गिरा कि उन्होंने वैक्यूम क्रिएट करके उसको बैलेंस कर दिया कि इससे बाहर नहीं जाएगा. उसको उन्होंने इट हैज बिकम अ सेलिंग पॉइंट फॉर देम कि यार लोग आते हैं देखते हैं कि यार ये फिजिक्स के असूल के खिलाफ. अब जो इंजीनियर है वो सोचता है यार ये कैसे हो सकता है, ये फिजिक्स का असूल तो है कि अगर उसके ऊपर प्रेशर है तो उसे बाहर जाना चाहिए ना, लेकिन उस प्रेशर को उन्होंने रिमूव कर दिया वहाँ से. अब जिस टैंक तो सब शीशे का, लेकिन ऊपर से
टैंक बंद है तो किसी को नज़र नहीं आता कि टैंक बंद है खुला हुआ, क्योंकि शीशा है ऊपर भी, ठीक। तो उन्होंने उसके ऊपर से वैक्यूम क्रिएट करके उसको कंट्रोल कर लिया सो दैट द वाटर डज नॉट गेट आउट। अब वो इज एन इंजीनियर, सो ही इज बीन एबल टू डिटेक्ट। आप लोग तो नहीं है ना? सोचते नहीं। ओके, द लर्नेबल स्किल्स, मैनेजमेंट नॉलेज एंड स्किल्स, operational, strategic, financial accounting, interpersonal skills, communication, etc. Decision-making skills, tools, what-if analysis, risk analysis, problem solving, root cause analysis, decision trees, ये हम पढ़ेंगे इस चीज़ें बाद में. Tips for engineering manager: demonstrate the technical competence and innovative capabilities, brush up the communication skill, ask, listen, write, and talk, show unfailing reliability to induce the trust and confidence, be proactive in seeking challenging tasks, exhibit readiness for assuming larger responsibilities, take courses, practice skills, gain experience. Okay, let's see what's the project. How do you define a project? कैसे आप define करेंगे project? We're going, right? A task, a goal, a target. Is a project. A task, a goal, or target is a project. Completed in a specified time in a specified within a financial constraint. Okay. Different sets of system working in a such way to achieve a specific goal or product. Okay. Which is a specified start and a Start and आपके Anything is a project. हैं? Anything can be a project, sir. Anything can be. Yes. Just anything is a project. Life is also a project. Life is a project. Shirt is a project. Shirt? Wearing a shirt is a project. Wearing a shirt is a project. तो anything तो ना होगा ना फिर. ये statement कि anything is a project, ये ठीक नहीं है. Anything to be done. Anything which should be done is a project. दुआ करना project है. Yes, sir. दुआ करना project. अच्छा, सोचना ये project का part है. project नहीं. क्यों? Anything to be done हो गया ना. इसको क्वालिफाई करते हैं किसको प्रोजेक्ट कहते हैं? What's a project? Starting time or ending time or temporary nature or कोई outcome होगा project. क्या? कुछ outcome होगा. अच्छा, कुछ outcome. That means there should be a deliverable for the project. बेटा? Anything to be done within the specified or defined resources. अच्छा चलें, इन्होंने खांसना शुरू कर दिया तो नहीं पूछा. अच्छा जी चलें. By and large, you have talked about the definition of a project. A project is usually a one-time activity. Okay, we have different connotations for, जब मुख्तलिफ fields के अंदर आप होते हैं तो project की definition में थोड़ा सा change आता है. तो लोगों का different fields के लोगों का different perspective होता है about projects. Different people with perspective of a project. A project is usually a one-time activity with a well-defined set of desired end results, complex enough that the subtasks require careful coordination and control in terms of timing, precedence, cost, and performance. The assignment of resources to accomplish specific results, deliverables, with a well-defined schedule and budget. Something that is contemplated, devised, or planned, a plan, a scheme, or an undertaking. So therefore, there are few characteristics of a project. These characteristics are: it must have some objective, कुछ करना, कुछ end, कुछ होना चाहिए. It must have a start time and an end time. It must have some budget. It should have an owner or a sponsor. It should produce specific deliverables, can vary vastly in size, complexity, and duration, may be a phase within a larger project or a phase within a program. Do you have any objection on any of one of these? Is there anything else that you want to add to this?
to specify a project. No? Laws and regulations. क्या एक प्रोजेक्ट 1000 साल का हो सकता है? Yes. हो सकता है। क्यों? 1000 साल का प्रोजेक्ट पे एतराज है आपको? खामोश ना हुआ करें, बोला करें, बोलेंगे नहीं तो फिर क्लास नहीं चलेगी आगे। सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये कौन डिसाइड करेगा कि 1000 साल के बाद प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? क्योंकि सर जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो फिर टाइम डिलीवरेबल क्यों नहीं अचीव होंगे? किसने कहा नहीं चेंज होंगे? टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल चेंज इतनी जल्दी आता रहता है और वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कुछ और हो जाएंगे तो सर टेक्निकली 1000 साल साउंड अच्छा सही नहीं होता, लेकिन वैसे लंबे टाइम की हो सकता है कोई भी प्रोजेक्ट। नहीं, 1000 साल का क्या मसला आपका? अल्लाह में के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 1000 साल से कम हैं? अच्छा, इशू है, वी ऑलवेज रिलेट the durations with a perspective of your accountability to the time, which is not correct. You just nobody. आप तो दुनिया में आए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद चले जाएंगे। आपका दुनिया के अंदर एक टेन्योर है। इसी हवाले से प्रोजेक्ट्स टेन्योर ओरिएंटेड नहीं होते, प्रोजेक्ट कंप्लीशन ओरिएंटेड होते हैं और जॉब ओरिएंटेड होते हैं। सो डोंट वरी अबाउट, फॉर एग्जांपल बहुत सारे महकमों के अंदर जो बॉसेस होते हैं वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते, वो कहते हैं मेरे टेन्योर के बाद चलता रहेगा, हु केयर्स। मैं ऐसा प्रोजेक्ट करूंगा जो मेरे टेन्योर में ख़त्म हो जाएगा, बाकी प्रोजेक्ट्स को काम ही शुरू करते हैं। ऐसे ही ना। और अगर ये नेचर में ट्रू होता तो अल्लाह मियाँ 100 साल का दरख्त होता है, अल्लाह मियाँ उगाते ही नहीं, यार ये तो इस जो बंदा उगा रहा है उससे तो पहले ही बंदा चला जाएगा पहले। नहीं, हज़ारों इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। अल्लाह मियाँ एक फ़ैसला करते हैं कि यार ये ग्लेशियर्स जो है मैंने पिघलाना है और समंदर तक लेके जाना है और इस समंदर के लेवल को इतना करना है, फिर आबादी में इस जगह पे रखनी है 2000 साल के बाद। प्रोजेक्ट्स हैं ना अल्लाह मियाँ के, क्या कई हज़ार हैं जी? उन प्रोजेक्ट्स में फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। मसलन क्या? इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव। बजट नहीं होता। नहीं, बजट क्यों नहीं होता? बजट तो हर चीज़ में होता है ना। बजट तो बजट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जी होते होंगे ना, होते होंगे हर चीज़ इसमें। देखिए ना सारी चीज़ें उसमें, इट हैज़ अ स्पॉन्सर, गॉड इज अ स्पॉन्सर इन दिस केस। इट हैज़ अ टाइम, इट हैज़ अ स्टार्ट टाइम, इट इज़ एन एंड टाइम, इट इज़ अ बजट, right? It has an objective. It may be in many phases. I remained in Skardu for some time. So where I was, I don't know how many of you are familiar with Gilgit Skardu Road. है कोई familiar? कौन है? किधर? देखी हुई रोड? सारी जगह देखी? Familiar with Tangushpadi? No? Familiar with Basho? Familiar with what? Tattapani? हैं? दमुदास? नहीं है familiar? तत्तापानी उधर है? तो फिर तुम किसी चीज़ से familiar है तो ऐसे ना गौना कि तुम्हें पता है। बहरहाल बात ये हो रही कि I was at a place which was Basho. उसमें हम बड़ा हाइकिंग का बड़ा शौक था, तो हम हाइकिंग करने के लिए, तो पहाड़ बहुत ऊंचे हैं वहाँ पे, मैदान में 10-12 हज़ार फुट तो होगा जगह, 10,000 फुट से तो ऊपर हो। तो एक दफ़ा मैं एक पहाड़ के ऊपर गया, तो पहाड़ की चोटी जो थी उसके ऊपर पानी, जब पानी गुजरता है ना पत्थर के ऊपर से, तो वो हाथ अपने निशान छोड़ के जाता है। तो उस पहाड़ की चोटी के ऊपर पानी के गुजरने के निशान थे पत्थरों पे। सो दैट मीन्स समटाइम्स कई हज़ार साल पहले और वॉट एवर वहाँ से पानी गुजरा करता था। तो अल्लाह के प्रोजेक्ट्स तो बहुत लंबे होते हैं। जब पानी वहाँ पे गुजरता था तो आज का वक्त वहाँ पे तो पानी का कोई नाम निशान ही नहीं है ना।
और पहाड़ का ऊपर था, वहाँ से कोई नज़दीक नाला शाला भी नहीं था या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी। टॉप ऑफ अ माउंटेन, अगर वहाँ से पानी गुजरता था तो कोई बात ही होगी ना, कहीं से पानी कैसे कहाँ से आता हो, शायद वो सारा एरिया उस वक्त पानी के अंदर हो। ठीक, सो देयरफॉर ओवर द टाइम अल्लामी के प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे होते हैं, उनको भी व्हाट्स एन ऑपरेशन, ऑपरेशन किसे कहते हैं? शिफा इंटरनेशनल में ऑपरेशन होता है जिस पे काम किया जैसे ऑपरेशन कहते हैं। मैं नशे में हूँ इस वक्त, इसलिए ज़रा जी बताइए। आई एम एक्चुअली यू नो फीलिंग to solve a specific problem in project, In a specific manner. operation. to solve a problem in a specific manner is an operation. आप बताइए, आपसे गाना तो बाद में सुनेंगे, पहले ये नगमा सुनाइए। यही तो कोई बात नहीं है, कुछ तो दिल में आता होगा ना, देख के तुझको नहीं पता यार, नहीं ये बात जाती है कहना, कह देना कि मुझे कुछ नहीं पता। ये तो कोई भी नहीं कहता, जो सोचते हैं वो ये नहीं कहते मुझे नहीं पता। अच्छा, जब प्रोजेक्ट क्लोज होता है तब ऑपरेशन स्टार्ट होता है, अदरवाइज नहीं स्टार्ट हो सकता। ऑपरेशनल इंस्टॉलेशन भी आ सकती है मैनेजमेंट में, यहाँ तो मतलब उस लिहाज से फील्ड में वी आर वर्किंग द पीरियड ऑफ Working of anything is called. वर्किंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ऑपरेशन। मैंने अंडा बनाना है, इज दैट एन ऑपरेशन? Yes. Repetitive arrangement. Repetitive. तो फिर काम की बात की है ना, अभी पहले कर देते तो मैं तुमसे नगमा ना सुनता ना। एनीथिंग विच इज रिपीटेटिव इन, तो क्या देर से काम करता था वहाँ? And then sir, I was concentrating on other things, right? ये आप पे कंसंट्रेट कर रहा है। अंदाजा लगाएं। अच्छा जी, ओके, लेट्स टॉक अबाउट। बेटा आप कुछ कहना चाहते हो ऑपरेशन के बारे में? फंक्शनिंग। अच्छा, मैंने पहली चीज़ जिस पे आपको जोर देने के लिए कहा था वो ये था कि हर प्रोफेशन में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन वर्ड्स की कॉनोटेशंस होती हैं। आप उस वक्त सिर्फ समझदार इंसान लगते हैं जब आप उनकी कॉनोटेशन समझ सकें। अब मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं शिफा इंटरनेशनल में और किसी पूछे कैन यू डिफाइन ऑपरेशन, तो ही विल हैव एन एब्सोल्युटली डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑपरेशन, राइट? यहाँ पे एक मैनेजमेंट की क्लास में जब मैं किसी पूछता हूँ डू यू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट्स एन ऑपरेशन, तो ही इज़ एन एब्सोल्यूट डिफरेंट कॉनोटेशन ऑफ एन ऑपरेशन, राइट? ऐसे ही है ना? सो देयरफॉर आप एक, मैं अमूमन सवाल आपके पास कोई लोग आए हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं, आपने उनसे, आपके पास 2 मिनट हैं उसको इंटरव्यू करने के लिए, 10 लोग आए हैं इंटरव्यू, तो आप किस बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे प्रोफेशन के हवाले से? 10 लोग हैं, सारे एक जैसी बातें कर रहे हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हु इज़ मोर नॉलेजेबल? और आपको एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए, कैसे? रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं उसके जवाबों की बात कर रहा हूँ, उस जवाबों में से आप क्या निकालेंगे? कोई हम प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के बताएंगे कि ये तो दो क्या रेलेवेंस किसकी? कि मेरी जॉब जो मैंने सारे फॉर एग्जांपल टेक्निकल लोग हैं और आप कोई जोंग का नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जोंग के प्रोजेक्ट रिलेटेड रेलेवेंसी चेक करूँगा। रेलेवेंट कैसे पता चलेगा आपको ये रेलेवेंट ज़्यादा है और ये कम है? एक्सपीरियंस और क्या? 2 बंदे हैं जिनका एक्सपीरियंस बिल्कुल एक जैसा है, टास्क नहीं है जो परफॉर्म अच्छा करेगा। या मैं 2 मिनट में क्या टास्क उसे दूंगा कि यार क्या बनाओ? ठीक है, चलो वो ड्यूरेशन होगी, सर्विस होगी, ये देखा जाएगा ना पास में उसका रेलेवेंट उस तरह का उसने जो 2 बंदे हैं दोनों बिल्कुल एक जैसे एक्सपीरियंस है, एक जितनी सर्विस की हुई है, एक ही क्लास के पढ़े हुए, डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज या उनका बॉडी लैंग्वेज से आप सेलेक्ट करें। देखा जाएगा कि क्या वो उन्होंने उसको किस तरह सॉल्व किया, तो दोनों में से जिसने बेहतर तरीके से solve सॉल्व तो नहीं करना ना, आप तो खाली सवाल पूछने हैं, उन्होंने जवाब देने और आपके पास 3 मिनट है उसमें आपने दोनों सिमिलर चीजें हैं सर, उसने भी बताई काम किसने डिफरेंस सर, उसमें मिनिमम एज वाले को देखना है।
फिर वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा देगा ना, आपके साथ ज़्यादा रह सकता है वो। तो ये क्या गारंटी होगी कि वो आपके साथ ही रहेगा? आप रिश्ता तो नहीं ले जा रहे कि छोटी है? Okay. You differentiate people in profession by their understanding of the connotations of the various words in that profession. अगर उनको ये बातें पता हैं तो definition of various words अगर उन्हें आप पता है और उसे सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ से आप उनकी competence का पता चलाते हैं कि ये कितने competent हैं। ठीक है? सो क्योंकि 3 मिनट में आप उनको कोई टारगेट नहीं दे सकते, कोई काम नहीं दे सकते वो करने के लिए, आप उनकी बातचीत से ये मालूम करते हैं कि how much does he know about profession. So various words that you use in the profession are the indicators of how good are you in the profession. This is a very surrogate measure of measuring the professionalism of people, but that probably is the only measure left to you when you talk to people with similar kind of experiences. ठीक है? क्लास में मैं यहाँ से जब 1-2-4 दफ़ा आप क्लास में से गुजर जाते हैं ना तो मुझे पता चल जाता है कौन कौन है। कहाँ से पता चलता है? यहाँ से पता चलता है कि मैं सवाल पूछता हूँ तो वो किस तरह का जवाब देता है। ठीक है? तो मुझे पता चल जाता है कि यार इसने पुराने नोट्स पढ़े हुए हैं, इसका तो दिमाग ही बहुत अच्छा है, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसने अच्छा काम किया हुआ है, ये बिल्कुल बुद्धू है, ये ये चीज़ें 2-4 क्लासेस के बाद समझ आ जाती हैं कौन। ठीक? So operations and projects share many characteristics. Operations and projects बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो commonly दोनों के अंदर, they are performed by people constrained by the limited resources, planned, executed and controlled. Operations may include activities such as financial management and control, continuous manufacture and the product distribution. Projects may include activities such as developing a new product or service, effecting a change in the structure, staffing or style of an organization, developing or acquiring a new or modified information system. Projects are temporary. Temporary means that every project has a definite beginning and a definite end. The end is reached when the project's objectives have been achieved or when it becomes clear that the project objectives will not or cannot be met and the project is terminated. Temporary does not necessarily mean shortened duration. Many projects last for several years. The duration of a project is finite. That means it ends someday. Now, does a 1,000-year-long project has a definite ending or not? Yes. It has. That's how it qualifies to become a project. The product of a project is unique. Now, the different thing about this is that every project will have an outcome which is extremely unique. The deliverable of 2 projects will not be the same. They'll always be different, right? Now, product service may be unique even if the category it belongs to is large. For example, many thousands of office buildings have been developed, but each individual facility is unique, different owner, different design, different location, different contractors and so on. Because the product of each project is unique, the characteristics that distinguish the product or service must be progressively elaborated. Progressively means the proceeding in steps and continuing steadily by increment. Elaborated means the worked out with care and detail, developed thoroughly. If you don't do a good project management, you lose money. From statistics, 31% of all new software development projects are cancelled before the completion. 53% of the project cost is greater than 189% of the original estimates. 16.2% of the software projects completed on time and on budget, and average overrun is 222% of the original estimates. A survey of the overall application development project revealed that 46% of IT projects were challenged, were completed over budgeted and passed the original deadline. 6% of projects succeed and 28% of projects fail. Okay, past the project management was not a very well understood subject. Very recently, in the last about 15-20 years,
people have started understanding the uses and the effectiveness of project management. And that has actually made an effect on the failure or success of projects. People now understand that how to culminate or terminate a project successfully, and what processes and what means to be used to ensure successful completion of project in time. Even then, and having said that, since I've seen projects and I've participated in projects which are abroad and here too, I've seen we actually don't understand the projects very well, and we actually don't manage the projects very well. So that's one of the reasons we spend more money, and that's one of the reasons we spend more time on a project, right? So what is project management? अच्छा, मेरी क्लास में मुंह बंद नहीं करना, ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स ने हाथ इधर रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट बूढ़े भी नहीं हुए अभी और काम भी है अभी और बहुत सारे करने हैं, लेकिन हाथ बांध लिए। हाथ बांध लेने का मतलब पता है क्या होता है? ये बॉडी लैंग्वेज है ना, हाथ बांध लेने का, आई एम रिलैक्स, नो मैटर व्हाट हैपेंस, लेट द टाइम गो पास, हु केयर्स, कुछ सीखना हो तो सीख लूँगा, वरना बैठा हूँ बस, ठीक है, आराम तो कर रहा हूँ। इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है। अच्छा नहीं लगता हाथ इस तरह बांध कर, ठीक। मैंने ऐसे पॉइंट आउट कर दिया, मैं मकसद नहीं था। यू शुड नो कि जब आपके सामने कुछ तरह का बंदा बैठा हो जिसने हाथ बांधे हो, तो इज शोइंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम ओके, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क एंड ठीक, इसका मतलब ये होता है। अच्छा जी, व्हाट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? The planning, controlling and organizing and leading any project is called project management. Okay, we saw that. अब वो एंड पे जो आप बैठे हुए हैं, आप बताइए। Managing and taking it. आप इतने पीछे क्यों बैठे हो खैरियत से? इतनी सारी कुर्सियाँ खाली हैं, दूर से देखने में अच्छा लगता है। हाँ फिर क्या, करीब आए ना, मुश्किल हो जाता है ना। मुझे भी ऊँचा बोला, और आज वैसे भी मैं ज़्यादा थोड़ा सा आई एम अंडर द इन्फ्लुएंस। अच्छा जी बताइए। अच्छा चलें आप बताएं। हैंडलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कितना आसान है? हैंडलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मैं अगर हैंडलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट पूछता हूँ उसका मतलब क्या, तो आप कहते हैं इसका मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हाँ बताइए। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग, आप Managing of a project, of different kind of projects for a single goal in a specific time and budget is known as a project management. We had a student last time in the class over, he was sitting over here. वो कौन थे जो थोड़ा सा कम बोल रहे थे, मुश्किल बोल रहे थे, क्या था, किधर है वो? You remember there was a student over here who was reluctant to speak in English? क्या नाम है उनका? He's missing from the class today. Okay, let's talk about this. Project management is a, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए, क्या वजह इसकी? उनसे पूछे ना क्या? So they have taken the advantage of skipping rather than learning. Very good. Achha. Project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to the project activities in order to meet or exceed the stakeholders' needs and expectations from a project. Meeting stakeholder needs and expectations involve balancing competing demands among scope, time, cost and quality. Stakeholders with differing needs and expectations, identified requirements, needs and unidentified requirements, expectations. Triple constraints of the project. These are those three constraints in a project through which you can measure the performance in the project. Project कैसा चल रहा है, इन्हीं तीन constraints से आप measure कर सकते हैं. This is called golden triangle. That means you want to know something about the project performance. These are those three indicators which will tell you
everything about the project. Now think of something which is not covered in this. Good. किसने कहा ये किसने कहा? आप, इसका मतलब है कि आप सोचते भी हैं. Good. आप भी सोचती हैं. So that's, you are absolutely right. Quality is not mentioned here. But actually the quality is mentioned in the scope. Scope के अंदर quality है. ठीक? So आप कोई भी project का performance का measure ले आए, वो इसमें cover हो रहा है. इन 3 constraints में. Think of something which is not covered. कुछ सोचें जो इसमें cover नहीं हो रहा. सोचा कुछ? कुछ नहीं आ रहा ध्यान में? कोई चीज़ बताइए ऐसी जो इसमें कवर नहीं हो रही. रिस्क नहीं हो रहा कवर. क्यों जी? रिस्क नहीं हो रहा. When we go to the risk register, we'll tell you किसका cover was. ठीक है? We'll teach risk management here very well. ठीक हो गया? Let's go ahead. Managing triple constraint builds the dashboard that you use for controlling the project. Without this dashboard, you have no way of knowing where the project is currently headed, how far off course it is, or what action to take to get it back on course. If you neglect this function, you and all other project stakeholders are subject to the unhappy surprises. Uncontrolled projects rarely reach their goal. Project management and other management disciplines. It's not only project management which is a needed area for a project manager to understand. The project manager needs to understand some other areas also in order to successfully complete the project. And these are project management knowledge and practices, application area knowledge and practices, and general management skills. So you need to know project management, you need to know general management, and you also need to know application area. Application area management, for example, जहाज बनाने जा रहे हैं और आप project manager हैं, तो आपको project management भी आनी चाहिए, आपको general management की skills भी आपके पास होनी चाहिए, and aircraft की understanding भी आपके पास होनी चाहिए. वो अगर तीनों areas आपके पास नहीं है, तो you can't be a good project manager. जनरल मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, जी बिल्कुल सारी चीज़ें जो ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस वगैरह हैं, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें आती हैं. ठीक है? ओके. So the context of project management, the project life cycle, project stakeholders, organizational influences, key management, general management. Should we have a break? ब्रेक एक ले लेते हैं. ठीक है, ब्रेक लेने के बाद आते हैं वापस एनवी स्टार्ट.